ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہیں سرخیاں۔ ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ آج شام مودی کی ویڈیو کانفرنس۔ ملک میں کووڈ وبا پر کنٹرول اور ٹیکہ اندازی مہم پر ہوگا تبادلہ خیال۔ ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم زوروں پر۔ 11 اپریل سے دفاتر اور دیگر کام کی جگہ پر ٹیکہ اندازی کی سہولت مہیا کرنے کے انتظامات جاری۔ دہلی کے ایمس میں مودی نے دوسری مرتبہ لی کووڈ کی خوراک۔ وائرس کی روک تھام کے لیے ہر فرد سے ٹیکہ لینے وزیراعظم کی گزارش۔ ناگرجنا ساگر ضمنی انتخابات کی مہم عروج پر۔ فاتح بننے کے لیے اہم سیاسی جماعتوں کے امیدوار اپنی کاوشوں میں مصروف۔ اور وزیراعظم مودی اور سیشلز کی صدر کی آج شام ورچوئل میٹنگ۔ مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا مشترکہ انداز میں ہوگا افتتاح۔ ہندوستان سیشلز کے حوالے کرے گا گشتی بحری جہاز۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے کووڈ وبا کی روک تھام کے لیے ہر فرد کو کاوشیں کرنی ضروری ہیں۔ بیماری سے بچنے کے لیے ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینس کا لحاظ رکھیں، انفرادی صفائی کے اصول اپناتے ہوئے بار بار ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہر اہل فرد کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر کووڈ کا ٹیکہ لیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام کووڈ 19 کی صورتحال اور ٹیکہ اندازی کو وسعت دینے کے بارے میں مختلف امور پر ریاستی حکومتوں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ ورچوئل طریقے سے منعقد کی جا رہی میٹنگ میں تقریباً تمام وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ یہ میٹنگ کووڈ کے نئے کیسوں میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر منعقد کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے پچھلی بار 17 مارچ کو چیف منسٹروں کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ انہوں نے کووڈ کی دوسری لہر کو روکنے کے لیے جلد اور فیصلہ کن اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ وزیراعظم مودی نے دوسری بار خود کو کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوا لیا ہے۔ آج دہلی کے ایمس میں وزیراعظم نے کووڈ ویکسین کا دوسرا خوراک لیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ٹیکہ اندازی وائرس کو ہرانے کے لیے چند طریقوں میں سے ایک ہے۔ وزیراعظم مودی نے ٹیکہ لینے کے لیے اہل تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد سے جلد ویکسین لیے۔ انہوں نے cowin.gov.in پر اپنا نام رجسٹر کرانے کی بھی اپیل کی ہے۔ یاد رہے کہ وزیراعظم نے گزشتہ مہینے 1 مارچ کو بھارت بائیو ٹیک کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لی تھی۔ وزیراعظم کو ٹیکہ دینے والی دونوں خواتین نرسوں نے اظہار مسرت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم نے ان سے خوشگوار انداز میں بات چیت کی اور ان کے لیے یہ موقع ناقابل فراموش رہے گا۔ ویکسین کی سیکنڈ ڈوز دی اور ہمیں بہت اچھا لگا ان سے مل کے، اور پھر ان سے تھوڑی سی بات چیت بھی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم کہاں سے ہیں، اور پھر ایک فوٹوگراف لی، اینڈ اٹ واز ریئلی ویری میموریبل مومنٹ فار می کہ ان سے ملنے کا موقع ملا اور انہیں ویکسینیٹ کرنے کا موقع ملا اس پینڈیمک سچویشن میں۔ Vaccinator who gave the Prime Minister the first dose of Covaxin. Presently, I am working in the Hospital Infection Control Committee. Aaj I had another opportunity to meet sir to vaccinate him for the second time. I assisted Sister Nisha. Basically, I am from Pondicherry, as already told. I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. اچھا لگا سر سے پھر سے بات چیت ہوئی، ایک فوٹو بھی لیے تھے ہم نے۔ کورونا وائرس کے کیسوں کی شرح میں اضافہ کے پیش نظر مرکزی حکومت نے ایک اور اہم فیصلہ لیا ہے۔ جاریہ مہینے کی 11 تاریخ سے ورک پلیسز پر ویکسینیشن کے لیے ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اجازت دے دی گئی ہے۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں ٹیکہ اندازی کے پروگرام چلائے جائیں گے۔ اگر کسی دفتر میں 100 افراد ٹیکہ لینے کے لیے تیار ہیں تو انہیں دفتر میں ہی ٹیکہ لگوانے کی سہولت دستیاب کرائی جائے گی۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومتوں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ تمام درکار مناسب انتظامات کروائیں۔ مرکز نے کہا کہ دفاتر کے قریب ویکسینیشن سینٹر قائم کر کے ٹیکے لگوائے جائیں۔ مرکزی سیکریٹری برائے صحت راجیش بھوشن نے کہا کہ ریاستی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے انتظامیہ کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے ایسے ویکسینیشن پروگراموں کا آغاز کریں اور 45 سال سے زائد عمر کے اہل افراد کو ٹیکے لگوائے جائیں۔ ملک میں
9,01,98,673 अफराद को टीका दिया गया है। तकरीबन 13 लाख अफराद को पहली बार कोविड की वैक्सीन दी गई है, जबकि 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को दूसरी बार कोविड का टीका दिया गया। कोविड की टीका अंदाजी की ये मुहिम 16 जनवरी को मुल्कगीर पैमाने पर शुरू की गई थी। इधर मुल्क में कोविड-19 के मजीद 1,26,789 केसेस की निशानदेही हुई है। इस दौरान 59,258 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 24 घंटों के दौरान कोविड से मुतासिर 685 लोगों की अमवात की तौसीक की गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में फ़िलहाल कोविड के 9,10,319 केसेस फ़ाल हैं। इसी दौरान तेलंगाना में कोविड के 2,055 नए केसेस सामने आए हैं। जीएचएमसी हदूद में 398 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए हैं। मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में 214 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी दौरान कोविड से मुतासिर 7 मरीज फौत हो गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सेशल्स के सदर अव्वल राम कलावां आज सेशल्स में हिंदुस्तान की तरफ से बनाए गए प्रोग्रामों का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आला सतही तकरीब में एक अदालत की इमारत का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। इस तकरीब के दौरान सेशल्स के कोस्ट गार्ड्स को तेज़ी से गश्त करने वाला जहाज़ सुपुर्द कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान एक तकरीब के ज़रिए सेशल्स को एक मेगावाट का शमसी प्लांट हवाले कर देगा। मुख्तलिफ तबक़ात की तरक्की के लिए 10 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह इस तकरीब का हिस्सा रहेगा। वर्चुअल इजलास में मुतअद्दिद मनसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा। सेशल्स के दारुल हुकूमत विक्टोरिया में मजिस्ट्रेट कोर्ट की इमारत बनाई गई है। हिंदुस्तान के ज़रिए सेशल्स में तामीर होने वाला ये सबसे बड़ा सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। आंध्र प्रदेश में एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात के तहत वोट डाले जा रहे हैं। जिला परिषद की 515 और मंडल परिषदों की 7,220 नशिस्तों के लिए सुबह से रायदही का अमल जारी है। हज़ारों राय दहिंदों ने अपना हक रायदही का इस्तेमाल किया। काफ़ी ड्रामाबाजी के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इंतखाबात पर रोक लगा दी थी। टीडीपी की अर्जी पर अदालत ने फैसला दिया था, जिस पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डिवीज़न बेंच से रुजू किया तो अदालत ने इंतखाबात के लिए हरी झंडी दिखा दी। पोलिंग के दौरान कड़पा, कृष्णा और दीगर अजला में कुछ मकामात पर हुक्मरान वाईएसआर, सीपी और टीडीपी उम्मीदवारों के अलावा कारकुनों के बीच झड़पें भी हुई हैं। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात को तमाम सियासी पार्टियां काफ़ी अहमियत दे रही हैं। टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर बताई गई है। हल्का असम्बली के अहम उम्मीदवारों की तफसीलात पर पेश है एक रिपोर्ट। टीआरएस रुकन असम्बली एर नरसिम्हा की बेवक्त मौत के सबब नागार्जुन सागर असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात की नौबत आई है। यहाँ 17 अप्रैल को पोलिंग होगी। तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने नागार्जुन सागर असम्बली हल्के में इंतखाबी जंग को काफ़ी संजीदगी से लिया है। इलाके में इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। बड़ी सियासी जमातों के अलावा दीगर मुसल्लिमा पार्टियाँ और आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 41 उम्मीदवारों ने यहाँ से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया है। ताहम असल मुकाबला टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ही है। कांग्रेस में सीनियर कायद के जनार्दन रेड्डी को नागार्जुन सागर हल्के से इंतखाबी मैदान में उतारा है। जाना रेड्डी ने इस हल्के से 10 बार मुकाबला किया था, जिसमें से वो 7 बार कामयाब रह चुके हैं। ये काफ़ी तजर्बाकार और सियासी शख्सियत है और कई बार रियासती वजीर भी रह चुके हैं। अब वो 11वीं मरतबा इस हल्के से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। एनटीआर के दौर में 14 महकमा जात का जिम्मा उनके सुपुर्द था। टीआरएस के आंजहानी उम्मीदवार को उन्होंने पिछले इंतखाबात में सख्त टक्कर दी थी। टीआरएस उम्मीदवार सिर्फ 4% वोटों की अक्सरियत से जीत दर्ज कराई थी। अब टीआरएस के आंजहानी एमएलए एड नरसिम्हा के फर्जंद एन भगत कुमार को इंतखाबी मैदान में उतारा गया है। एड नरसिम्हा जिला नलगुंडा नकरेकल में अवामी मुहिम्मात में शामिल रहे थे। उनके फर्जंद ने इलाके में तलबा की मुहिम्मात और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में अहम किरदार अदा किया था। इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बाद वो कुछ अरसे तक मुलाजिमत करते रहे। वकालत की तालीम हासिल करने के बाद वो कुछ दिनों हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते रहे थे। बीजेपी ने नागार्जुन सागर हल्का असम्बली से पी रवि कुमार को मुकाबले के लिए उतारा है। वह तिरुपुरम मंडल के पलगू टांडा से ताल्लुक़ रखते हैं। सरकारी मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने मुख्तलिफ मंडलों में खिदमात अंजाम दी। 1 साल कबल उन्होंने अपनी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया और तब से वो निजी अस्पतालों में मुनक़िद होने वाले समाजी खिदमात के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहे हैं।
जनवरी में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई और फरवरी में इलाका हालिया में मुनक़िदा अवामी जलसे में बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी शरीक हयात त्रिपुरा मंडल के पुलगु टांडा की सरपंच हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। स्टॉक मार्केट में उछाल और मुनाफे का रुझान जारी है। कल की तरह आज भी हिस्स बाजार के कारोबार में काफ़ी जोश खरोश देखा गया। सेंसेक्स 50,000 पॉइंट से आगे उबूर कर गया था। निफ्टी में भी उछाल देखा गया। कोविड की दूसरी लहर के बाद मुसलसल तीसरी बार शेयर मार्केट में अच्छे कारोबार का रुझान देखा जा रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखें फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। रियासतों के वज़राए आला के साथ आज शाह मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुल्क में कोविड वबा पर कंट्रोल और टीका अंदाजी मुहिम पर होगा तबादला ख्याल। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम जोरों पर। 11 अप्रैल से दफातर और दीगर काम की जगह पर टीका अंदाजी की सहूलत मुहैया करने के इंतजामात जारी। दिल्ली के एम्स में मोदी ने दूसरी मरतबा ली कोविड की खुराक। वायरस की रोकथाम के लिए हर फर्द से टीका लेने वज़ीर आज़म की गुजारिश। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम उरूज पर। फातेह बनने के लिए अहम सियासी जमातों के उम्मीदवार अपनी काविशों में मसरूफ़। और वज़ीर आज़म मोदी और सेशल्स की सदर की आज शाम वर्चुअल मीटिंग। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का मुश्तरका अंदाज में होगा इफ्तिताह। हिंदुस्तान सेशल्स के हवाले करेगा गश्ती बहरी जहाज़।